जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 539th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोड मैप फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसी. दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दैट नेक्स्ट ट्रेनिंग इज scheduled on April 16th and 17th. So if anybody is interested, you can WhatsApp and you can register. Okay, so right now US market is under pressure. S&P 500 has hit the 4550 level. This is where resistance should come. So this is precisely the zone जहाँ पे बाजार को जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना है. यूएस मार्केट के टर्म्स में कहूँ, S&P 500 के टर्म्स में कहूँ तो आज का जो हाई प्रिंट हुआ है 4550 से लेके 4600 के आसपास. सो दिस इज द जोन वेयर markets need to be very careful. However, US market and Indian market, if we compare how each of these markets have behaved from the bottom, you will see that US market has made a very steady up move, right? And every day it is defending the previous day bottom and it is closing at higher level. So even today it is defending the previous day bottom, which is 4500 roughly. So if this pattern continues, then definitely it can stretch a little more higher, and probably 4650 should also come, and maybe from there the decline should come. But overall ये वो slab है जहाँ पे uh, before the correction this was a heavy demand zone. This was a demand zone, and then it was broken down, and after a retest again the selling started. So यहाँ पे जो है definitely some resistance will come in the US market, so you need to watch out. Other equity markets, the German DAX and the French market, they are trading up. UK market is flattish. So overall there is no convincing cues from the global markets. It's a mixed bag. कुछ markets ऊपर है, कुछ markets bullish हैं, कुछ markets down है. So nevertheless, I don't think कि अब स्पेशली कल के लिए और परसों के लिए मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट से हमारे मार्केट पे कोई फर्क पड़ेगा. बिकॉज जैसा आज मैंने ग्रुप में क्लोजिंग के पहले कहा कि आई थिंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, दे हैव मेड अ बॉटम फॉर दिस वीक एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिशनेस टू कंटिन्यू इन द इंडियन स्टॉक मार्केट. सो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे जाने से पहले एक बार हम फॉरेक्स मार्केट पे आते हैं, बिकॉज टुडे देयर इज अ वेरी वाइल्ड मूव इन द यूएसडी जेपीवाई पेयर. और ये जो पेयर है ये हमें लास्ट वीक से ही काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है. काफ़ी इसमें जो है आज हमने फाइनली इसमें एग्जिट भी कर दिया लॉस में ट्रेड. बट इफ़ यू सी, दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज कैंडल, एंड जनरली फॉरेक्स मार्केट में इस तरीके का आउटसाइज्ड कैंडल बहुत रेयर होता है. मे बी वंस इन अ ईयर और वंस इन अ कपल ऑफ ईयर्स टाइप का ये जो है एक क्लाइमैक्टिक मूव हमें देखने को मिला है. सो जेपीवाई आईएनआर का जो ट्रेड है उसे लॉस में जो है आज कट किया गया है. लेट अस सी अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है, which I think there is a very great chance that it should finally, terminate somewhere here 125, 126. So I will be watching this pair very carefully, because if we indeed get the top somewhere here, which is very most likely, then हम इसे बाद में वापस जो है इसको अटैक करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट राउंड वी विल गेट इट एवरीथिंग बैक. सो ये एक प्लान है. सो ये प्लान जो है हम इसे आने वाले कपल ऑफ डेज में इसको हम ध्यान रखेंगे एंड इसको एग्जीक्यूट करेंगे. इफ I want to show you the bigger perspective of the USD JPY. So this is the chart over here. This is the monthly chart, and this is almost 28-year chart of USD JPY. And right now we are here at $125 level. So if you can see, this has been a historical resistance, and right now USD JPY is trading almost at a 20-year high, if I'm not wrong. Yeah, we are almost trading somewhere the levels that were last seen near 2002 and 2001. So you can imagine that the relative strength and the overboughtness in this pair. Nevertheless, let us see how things unfold. Overall, I think 125, 126, this is the zone where definitely it should peak out. We are trading way higher, and this being March closing, quarterly closing, so some sort of capitulation from the short side, that has also added fuel to the fire. और आज specifically ये बहुत ज़्यादा इसलिए भी move कर गया because there is a dual effect coming from the US dollar. और इंडियन मार्केट में इसका जो है
डबल इम्पैक्ट डाउन साइड में हो गया. कैसे डाउन साइड में हो गया? इफ यू सी द यूएस डॉलर, दैट इज वेरी बुलिश टुडे, राइट? सो कल हमने डिस्कस किया था कि यूएस डॉलर जो है ओवरऑल मैं इसके ऊपर नहीं देख रहा हूँ. इवन इफ इट गोज टू द लोअर साइड, एक ट्रिप इसमें ऊपर आना बाकी है. या तो अब ये डायरेक्ट यहाँ से आए या नीचे जाके आए. नेवरदलेस इसके ऊपर हम नहीं देख रहे हैं. नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर इज बिकॉज ऑफ द बुलिशनेस इन द यूएस डॉलर, यूएसडी जेपीवाई ये डबल स्पीड से ऊपर चला गया. ठीक है. और आपका जो यूएसडी आईएनआर है, ये इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, बिकॉज द यूएस डॉलर वाज गोइंग अप, यूएसडी आईएनआर शुड हैव आल्सो गॉन एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट अप. व्हाट इट डिड इज इट वेंट डाउन, बिकॉज ऑफ विच द जेपीवाई आईएनआर पेयर हैड अ डबल वैमी इफेक्ट. और इसीलिए जो है इसमें आज पूरी तरीके से एक सेल ऑफ हो गया. सो नाउ today's experience must be noted by all forex players. अगर आप forex में आने वाले अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आज का जो दिन है, स्पेशली आज जो जेपीवाई आईएनआर में जो मूव हुआ है, ये आपको बहुत अच्छे से नोट करके रखना है. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद such days whenever they come, because they are not going to come every day. It's a one in a year, one in a 2 year kind of a situation. तो अगर आपको couple of experiences हैं ऐसे एक आउटसाइज कैंडल के, तो फिर आप फ्यूचर में इससे परेशान नहीं होंगे, आप जो है इसे हैंडल कर लोगे. ठीक है. सो ये रही बात जेपीवाई आईएनआर की. सो लेट अस सी कल सुबह तक इसमें क्या होता है. ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो ये थोड़ा सा वीक आज हो चुका है, बट आई थिंक इसमें एक सेकेंडरी मूव मेरे ख्याल से आज शायद कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज वेयर द सपोर्ट कम्स and it should again start to rally. Now tomorrow is NSE Forex futures expiry, so 12 बजे के बाद जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू रोल ओवर योर पोजीशंस. इस समय जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था कि सारे पेयर्स वैसे तो बेरिश है. जेपीवाई आईएनआर 63.2 के नीचे बेरिश था. हालांकि इतना ज़्यादा डिक्लाइन होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था एक दिन में. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर 62.2 एंड देन अगेन बाउंस बैक, बट इसने पूरी तरीके से 62 को भी तोड़ दिया. दैट वाज द टाइम व्हेन आई जस्ट एग्जिटेड कि ये अब बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुका है. So now, how we can handle? See the USD INR pair, because tomorrow is expiry. So कल के दिन हम ज़्यादा रीड नहीं करेंगे प्राइस एक्शन को. कल का दिन जो है हम जाने देंगे. Let us see how USD INR behaves, because now the thing is very different. If US dollar has already rallied and USD INR did not move up, instead it went down. So what will happen is when the US dollar starts to come down, the USD INR pair will fall much more, and because of that आपका क्रॉस पेयर्स पे, JPY पे और GBP पे, इन सब में एक प्रेशर पड़ेगा. सो टुमारो आई वुड लाइक टू सी वेदर नंबर वन, आज का USD INR मूव वाज a fake down move, or maybe some strong dollar inflows were expected to come in India. Because of that maybe आज जो है इसने डॉलर के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया. तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं मन में. आई थिंक टुमारो दोज क्वेश्चंस विल बी सॉल्व, एंड पोस्ट दैट वी विल रिव्यू द फ्यूचर ट्रेडिंग प्लान. ओवरऑल अभी भी इसमें सिचुएशन क्या है? जीबीपी आईएनआर स्टिल that 100 level 99.5 वो बेस है. सो दैट इज वेयर यू कैन गो लॉन्ग. बाकी और किसी में ट्रेड नहीं है. जेपीवाई आईएनआर जो है अगेन एक दिन ऑब्जर्व करेंगे. आई थिंक 63.2 शुड बी टेस्टेड वंस, post which we will review what to do in this pair. Now commodities की अगर बात करें तो आज commodities में डिक्लाइन है. इस समय गोल्ड में एक करेक्शन आ चुका है 51,600. गोल्ड कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1920 डॉलर्स ये एक अच्छा लेवल है कॉमिक्स पे जहाँ पे बाय करना चाहिए. सो आई थिंक गोल्ड, अगर आप ओवरनाइट नहीं खेलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट गोल्ड टुडे यू शुड हैव बॉट एटलीस्ट इंट्राडे. सम गेन्स यहाँ पे आते, और कॉमिक्स पे जो है 1925 का ही बॉटम लगा है. So gold probably because there's a the expiry week is going on. So gold, if you can trade with respect to the dollar, like so gold you can buy somewhere here. Maybe tomorrow भी आप buy कर सकते हैं 1920 के आसपास यहाँ पे, and keep a stop loss of just under 1900. और कॉमिक्स का चार्ट बहुत ही क्लियर है, and then we should expect the higher levels to come. गोल्ड मिनीज में ट्रेड करना, क्योंकि नेक्स्ट एटलीस्ट 7 days I'm expecting a lot of volatility, undue volatility in the markets, especially in the commodities and forex market.
नेचुरल गैस इज ट्रेडिंग अराउंड एट 420, सो इस समय इसमें कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है। जैसा कल एक्सप्लेन किया था कि अगर इसमें एक करेक्शन आता है टिल 390 और 400 ओनली, देन वी शुड बाय। फ्रेश बाइंग यहाँ पे जो है अवॉइड नहीं करनी चाहिए। अगर कोई लॉन्ग है तो आप इसे कुछ ट्रेल वगैरह कर सकते हैं। यू कैन ट्रेल टू 408 द प्रीवियस डे बॉटम। क्रूड में 8,000 पे बाय करना है, 9,000 पे सेल करना है, यही एक सिंपलिस्टिक व्यू के साथ जो है चल रहे हैं। इंट्राडे प्ले करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओवरनाइट प्ले करना है तो 7,900 का आपका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो क्रूड इज वेरी सिंपल एंड 8,000 to 9,000 दैट इज द ट्रेडिंग रेंज। कॉपर और निकल एंड दी लेड एल्यूमिनियम, इसमें इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन इज गोइंग वेरी नाइसली, 48,000 के आसपास भी जा चुका है। सो बिटकॉइन आई थिंक इज गोइंग टू कैच अप स्पीड एंड आई थिंक बिटकॉइन इज गोइंग टू रॉकेट ऑल थ्रू 52,000 लेवल, क्योंकि अब बिटकॉइन में 45,000 का साइकोलॉजिकल जो लेवल है ये पूरी तरीके से कैप्चर हो चुका है। सो बुल्स हैव सीज द 45,000 लेवल एंड आई थिंक नाउ बिटकॉइन इज रेडी फॉर 52,000। सो बिटकॉइन में कोई भी करेक्शन टिल 45,000, नियर 45,000 शुड बी बॉट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 42,000। तो ये एक सेकंड ट्रेड है जो मैं इसमें रेकमेंड कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने यहाँ से रेकमेंड किया था विच वॉज ऑलमोस्ट एट द बॉटम। टारगेट ये था। ये फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड साइकिल जो है शुरू हो चुका है। एक्सपेक्ट बिटकॉइन टू रॉकेट टिल 52। तो अगर ये हमें थोड़ा बाय ऑन डिप्स मिलता है, ये हमारे पहले रेजिस्टेंस थे, सो नाउ दे शुड बिकम आवर सपोर्ट्स। सो राउंड अबाउट 45,000 46,000 के आसपास अगर बिटकॉइन मिलता है तो 42 के स्टॉप लॉस से इसे बाय करना चाहिए 52,000 के लिए। इथेरियम की बात करें 3370, इथेरियम हैज क्रॉस्ड इवन 3300। so ethereum is going very nicely, very great, and I think ethereum can go all the way till 36 and maybe 38 or 3900 also. so ethereum का चार्ट अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी सिंपल प्ले। अगर 3200 के आसपास मिले तो इथेरियम डेफिनेटली बाय करना चाहिए 2900 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। सो बाय नियर 32, स्टॉप लॉस 29 एंड टारगेट हम लेके चलेंगे ऑलमोस्ट 3900 के आसपास। सो इट्स अ वेरी बिग मूव दैट आई एम रिकमेंडिंग इन इथेरियम। नाउ please understand that those who have played the first round, they have very good profits, they have very good money. So these guys will be psychologically in a better position to play this secondary move. that is what I advocate कि किसी भी चीज को जो है ना हाउस मनी के ऊपर प्ले करो। पहला ट्रेड जो है अपने पैसे से सेफ ट्रेड लो, उससे जो पैसा कमाया उससे जो है रिस्की ट्रेड लो। इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ मिक्स एंड मैच अप्रोच तो क्या होगा कि आप मोस्ट ऑफ द पोजिशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी साइकोलॉजिकली वेरी वेरी हेल्दी, इन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड यू कैन डेफिनेटली टेक इवन रिस्कियर ट्रेड्स। जैसे आप किसी ने पूछा कि क्रूड ऑयल अगर 8 से 9,000 का रेंज है तो हमने इसे बॉटम पे जैसे बाई किया, सपोज 8,000 पे बाई किया, तो क्या इसे रख देना चाहिए? सो द रिप्लाई इज वेरी सिंपल, आपको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैन यू अफोर्ड स्टॉप लॉस ऑफ 7700? The answer is no, because right now you have hardly made 100 points, correct? So आप 11:30 के बाद क्या करना है उसका टेंशन अभी क्यों ले रहे हो? आप पहले जो है इसमें हाउस मनी बिल्ड करो ना, इसको रोटेट करो, चर्न करो, 300-400 पॉइंट्स आप इंट्राडे एक्यूमुलेट करो एंड देन यू कैन यूज दैट मनी टू टेक दैट बिग पोजिशनल ट्रेड। उसमें आपको रिस्क भी नहीं है क्योंकि आपने मार्केट से पैसा कमाया हुआ है एंड यू आर विलिंग टू पुट दैट मनी ऑन अ बिगर स्विंग ट्रेड। एंड सेकेंडली आपको साइकोलॉजिकली उतना प्रेशर भी नहीं फील होगा। Now compare it with the normal scenario where you bought near these levels, say 8050, ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पे 200 पॉइंट का, आपने पोजिशनल के लिए रखा, ये वापस नीचे आके आपके कॉस्ट पे क्लोज होता है। नाउ यू डोंट हैव एनी हाउस मनी, प्लस यू हैव अ नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट विच इज दिस कि यहाँ पे आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट था, नाउ दैट इज गॉन। अंडरस्टैंडिंग? सो स्पेशली फॉर MCX ट्रेडर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग क्योंकि ये आप लोग बार बार यही गलती करते हो कि यहाँ पे पोजिशनल रखना है नहीं रखना है ये 11:30 बजे आप डिसाइड करोगे, बट सुबह से लेके जो ये 12 घंटे का स्लैब है इसमें ट्राई टू बिल्ड एज मच हाउस मनी एज यू कैन। एक बड़ा व्यू पकड़ो कि सपोज ओके 8,000 से 9,000 का ये एक ट्रेड है, सो ट्राई टू बिल्ड एज मच हाउस मनी एज पॉसिबल, क्योंकि वही आपका एक कुशन है बड़े ट्रेड्स खेलने के लिए। अंडरस्टैंडिंग? दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ पोजिशनल करते हैं उनका मामला वेरी क्लियर है, उनका अप्रोच ही यही है
कि हम जो है 8,000 के आसपास बाय करेंगे. सो प्रॉब्ली दे मस्ट हैव बॉट समवेयर हियर, they must have put 200 point stop loss, and now whatever happens, they are not bothered. They will not think कि okay यहाँ पे 200 मिला अब नहीं मिल रहा है and all those things, understanding, क्योंकि ये उनका ही अप्रोच है. 8,000 पे बाय करो, 9,000 पे बेचो, तो बीच में वो कुछ देखेंगे नहीं. So sometimes they will make big money, sometimes they will give back whatever they have earned, and all those things will happen. Okay, let's move towards what? Let's move टुवर्ड्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो मैं समझता हूँ बहुत ही सिंपल चार्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी का, और कल जैसा एक्सप्लेन किया था मैंने कि आज डिक्लाइन होगा और ट्यूसडे को मार्केट जो है बॉटम करना चाहिए. सो टुडे what has happened is nifty and bank nifty, instead of waiting till tuesday, today only they have bottomed, and very nice rally we have seen almost from 17,000 level to 17,225 intraday. Now see, the plan is very clear, buy on dips करना है, कोई टेंशन नहीं है. Now for tomorrow, specifically for tomorrow, कल के लिए तो मैं एक चीज बताऊंगा ही. दूसरी बात की हम एक पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं दैट राइट नाउ 17,350 वीकली मॉब लेवल है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एंड नियर 17,000 एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर सपोर्ट मिल रहा है. प्रॉब्ली मार्केट इज लुकिंग टू मेक सॉर्ट ऑफ अ ट्राइंगल ओवर हियर, and whichever side this breaks, the next side will give us a bigger move. Okay, so I'm expecting 18,000 level to come. लेट अस सी अगर ये आता है कि नहीं आता है, बट एक बार 17,350 क्रॉस हो जाए तो फिर इसके दरवाजे खुल जाएंगे, एंड विल बी वेरी इजी फॉर मार्केट्स टू रीच दैट लेवल. नाउ having said all those things, let us see what sort of candle we have made. So we have made a very nice bullish pin bar from a very nice demand zone. So कल के लिए देखिए प्लान बड़ा सिंपल है. ओके, कल के लिए प्लान बड़ा सिंपल है. कल अगर गैप अप होता है तो आपको अगेन यू हैव टू बाय द गैप, पुट टुडेज बॉटम एज अ स्टॉप लॉस एंड प्ले फॉर हायर टारगेट्स. हायर टारगेट्स क्या है? 17,350, 17,440 and all those levels. If there is no gap up, then don't do anything, let market slide down. Okay, and then try to buy on lower levels. कैसे बाय करेंगे इन सारी चीज़ों को मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. कल का प्लान बहुत ही सिंपल है. So tomorrow, if there is any gap up, etc., go with the gap and keep 17,080 as a stop loss. और आपके टारगेट्स पूरे ओपन है. 17,485, 17,500, all those levels are open. Now, as per the mob level, tomorrow's mob level is this, which is 17,000, 17,120. So this is the mob level. Give or take 20 points. 17,100 is a very good support. So any dip that comes tomorrow, it just buy trade, and आपका जो है stop loss हो जाएगा 16,970, or you can keep, 970 is fine, just below today's bottom. We have a double bottom structure over here, so just below this, so it's 16,920. So buy on dips, and the next first target जो होगा वो 17,350 के आसपास होगा. Now you know the significance of this level 17,350, so be little cautious over there, and once we cross that level, then 17,485 is the next target. So I think I'm bullish on the Indian equity market, especially for 31st of March, and I don't think that it is going below 16,900 in the next couple of days. Even if US market comes down, I think Indian markets जो है ये bullish रहेंगे. क्यों? क्योंकि US market काफ़ी steady upside कर चुके हैं, and it is now the time for Nifty to scale some higher levels. So tomorrow, if there is any gap down, again buy on dips approach करेंगे. Tomorrow, if there is any gap up, तो आप momentum play कर सकते हैं, या आप पुल बैक का वेट कर सकते हो. ऑल इन ऑल इट्स अ बाय डे. नाउ बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो व्हाट अ फैंटास्टिक कैंडल, बहुत ही शानदार, एंड वेरी वेरी नाइस प्राइस एक्शन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन. सो टुमारोज प्लान इज वेरी क्लियर. जहां आज की क्लोजिंग हुई है 35,700, दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स योर मॉब लेवल. बट इसमें थोड़ा सा एक चेंज है. So tomorrow the mob level is very much this, the closing price, but at the same time you can also consider this entire zone 35,400
to 35,300. This is a very strong support zone. So what I would like to suggest is, इसको इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर गैप अप होता है, ठीक है, there is a gap up, then given today's context, you must go with the gap. You will have to take that chance. तो हम सॉरी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एंड इन दैट केस ट्राई टू कीप 35,500 एज अ स्टॉप लॉस. आज का जो ओपनिंग जो लेवल था 35,500 as a stop loss. So you can buy here 35,500 as a stop loss, and this pending gap around 36,100. यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि आपने काफ़ी ऊपर खरीदा होगा. तो वी डोंट वांट दैट प्राइसेस गो अप, यू आर इन द मनी एंड देन दे आर कमिंग डाउन एंड नाउ यू आर थिंकिंग यू आर लॉस्ट. ठीक है, तो ये चीज़ होने ना पाए, एक बार प्रॉफिट बुक करो. ठीक है, सो इसीलिए कल का जो मॉब लेवल होगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्केल डाउन करूंगा, एंड आई वुड लाइक टू गो विद 35,450 as the make or break level, and any dip that comes, it's a buy. Any gap up opening, it's a buy. Now one more thing, keep in mind that suppose you get a gap up candle like this, there was a gap up but prices came down, and this is just a 5 minute candle. तो दोस्तों इसको गैप अप में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते. मतलब टेक्निकली ये गैप अप हुआ है, बट इमीडिएटली नीचे आ गया है. सो दिस गैप अप वाज नॉट ड्यू टू वेरी एक्साइटिंग अप मूव, बट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर बुक. ठीक है, तो इसमें मत कंफ्यूज होना. ओके, in that case wait for some lower levels to come, which is near the mob level here, and then you buy. ठीक है, सो 35,450 ये हमारा मॉब लेवल है. इसके नीचे थोड़ा सा मार्केट जो है ना वीक हो सकता है. सो इसके नीचे जो है मैं समझता हूँ कि लॉन्ग शो कट कर देना चाहिए, एंड बिलो दिस वी कैन वंस गो 34,800. 34,800 इसका सिग्निफिकेंस मैं एक्सप्लेन करता हूँ, that if it really goes here and starts to come above 35,000, in that case just buy, put this as a stop loss, and straight away इसका target होगा आपका 36,400 500. This will not come obviously in one day, but ये setup ready हो जाएगा. This setup will become ready for next couple of days. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. मैं कपल ऑफ सिचुएशंस इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट कोई भी सिचुएशन आउटप्ले करे, आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल की क्या सिग्निफिकेंस है. ठीक है, सो आज का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत बुलिश है, बट मान लो ओवरनाइट कुछ हो गया और कल मार्केट नीचे की तरफ खुलता है, तो मॉब लेवल को ध्यान देना. मॉब लेवल जो है दैट इज वेरी क्रूशियल. बिलो मॉब लेवल इफ वी आर ओपनिंग डाउन और इफ वी आर गोइंग बिलो दैट मॉब लेवल, सबसे पहले लॉन्ग शो कट कर दो ताकि टेंशन खत्म. ठीक है, then let it go till 34,800. Now this is a very crucial level. Okay, so if the bulls are in control, अगर बुल्स को ऊपर के लेवल्स लाने हैं तो बुल्स इस लेवल को डिफेंड करेंगे. तो इसकी प्राइस एक्शन कैसे दिखेगी? समथिंग लाइक दिस. इट विल ब्रेक बिलो दिस, गो डाउन, कम बैक अबाउ. तो जब ये ऊपर फ्लश होके ऊपर आ रहा है तो उस समय आप जो है लॉन्ग ट्रेड करो, एंड वॉट एवर बॉटम वॉज मेड दैट शुड बी दी स्टॉप लॉस. यू कैन ऑल्सो, just for confirmation purpose, make use of VWAP. Always make use of VWAP in such a case when you are trying to capture a counter trend move. ठीक है, 35,450 के ऊपर टारगेट हो जाएगा 36,100, विच इज द गैप एरिया, एंड सेकेंड टारगेट 36,400. ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. आई थिंक बहुत ही क्लियर है, एंड नेक्स्ट 3-4 days every day the index is going to give big moves, especially इस टाइप के moves, the sudden spurt and the sudden decline. So be ready for these kind of moves. All right, okay, so I think I'm done with the analysis. If there is any stock query, you can message and we can take some stock queries. If there are no stock queries, we can wind up. What is this? ये सब बकवास की बात है. ओके,
ठीक है, सो आई थिंक आई डोंट सी एनी स्टॉक क्वेरी। कल हमने काफ़ी स्टॉक क्वेरीज जो है हमने कवर कर लिया था। ठीक है, सो लेट्स अस वाइंड अप दिस सेशन। आई थिंक शॉर्ट एंड स्वीट 30 मिनट्स का सेशन था, 24 मिनट्स का। भारती एयरटेल पे क्वेरी है। ओके, भारती एयरटेल। सो भारती एयरटेल 720 के ऊपर तो आउट राइट बुलिश है, ऑब्वियस सी बात है। लुक एट दी फ्लैग। सो भारती एयरटेल देखो दोस्त, अभी और ऊपर जा सकता है 753। लास्ट टाइम मैंने 720 का रेजिस्टेंस दिया था एंड 726 से भारती एयरटेल ड्रॉप हुआ था 700। सो it has broken above this level, so 750 can come. If you are long, then try to book near 750 trail to cost. if you are short तो गलत शॉट है, इस समय गलत शॉट है। यहाँ पे जब मैंने एडवाइस किया था तब सही शॉट था। Now, also remember one thing, okay? This stock, Bharti, can anytime become a violently bullish counter, okay? So, if not in this cycle, but in the next cycle, this stock is going to become very bullish and in a very strong manner. देखो बुलिश होना और किस तरीके से बुलिश होगा, इसमें बहुत अंतर है। सो दिस स्टॉक, यू नो, in next quarter, just a matter of 3 months, in next quarter it may remain in this range of say 650 to 750, 770, but sooner or later, and I believe that should be by before June or somewhere during June, this stock is going to go 860 and very very higher levels। ठीक है, सो ये अगले 6 महीने के साइकिल से ये बहुत ही शानदार है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम देखो, नेक्स्ट टाइम ये ऐसा कुछ करना चाहिए। ओके, इट शुड कम नियर द 650 एंड देन स्टार्ट टू मूव इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर। और शैलो पुलबैक्स आएंगे, शैलो पुलबैक्स आएंगे, वॉल्यूम्स बढ़ने लगेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी, दिस इज ऑन रडार फॉर 960 and 1000 and all those levels sometime in June। Any dip that comes in Bharti Airtel near 650 is a blind buy with a stop loss of 620। सोचना नहीं है, कैश में उठा के रख लो। औरो फार्मा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी कुछ हफ्ते यहीं पे लाइव सेशन होगा। शेयर भी कर दीजिए अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में। औरो फार्मा एग्जिट कर दो, पहले भी बता चुका हूँ कि these pharma counters, they are in a downtrend, okay, and these are just technical pullback। so औरो फार्मा में जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइस वाइज आई थिंक द बॉटम इज मेड। एट वर्स्ट केस सिनेरियो ये एक बार 570 आ सकता है प्राइस वाइज, बट टाइम वाइज मैं समझता हूँ कि अभी बॉटम नहीं हुआ है। बॉटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंडिंग वेज बन रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। एंड एक्सपेंडिंग वेज में क्या होता है दोस्तों कि एक बार ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये जो गिरावट आएगी ये सबसे बड़ी गिरावट होती है, लाइक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैनर, ओके। और वर्टिकल वी शेप रिकवरी होता है इसका। तो इसीलिए मैं स्टॉक को वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है लाइंस भी ड्रॉ करके रखे कि 550 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलेगा तो उस टाइम हम एक बार चेक कर लेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली वी शुड बॉटम एट दिस these levels near 550 560 in the month of somewhere May or mid May, late May और जून के आसपास, somewhere over there। ठीक है, अभी के लिए तो ये मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, वरना वापस से अगर डिक्लाइन किया तो आप फिर फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी है पीडी लाइट इंडस्ट्रीज, औरोबिंदो फार्मा। आई थिंक आई एक्सप्लेन करेक्ट। काफी लोग औरोबिंदो फार्मा में बच के रहना। ओके, नेक्स्ट इज पीडी लाइट। सो पीडी लाइट देखो सिंपल सा गेम है पीडी लाइट में। वेयर इज द 233 मूविंग एवरेज हियर, इसके साथ और क्या है, गैप है। और क्या है इसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइस एक्शन है। ठीक है, सो ये स्टॉक अगर 2270 दिख गया, आंख बंद करो, बाय करो, और आंख खोल के स्टॉप लॉस भी लगाओ। ठीक है, आंख बंद करके बाय करो, उसके बाद आंख आंख बंद मत करके रख देना, आंख खोल के स्टॉप लॉस लगाना 2120। ये जो बॉटम है एक बार चेक कर लेना प्रिसाइसली, जो भी लेवल है इसके नीचे का स्टॉप लॉस। सो दिस इज वेयर द बेस्ट बाइंग प्राइस कम्स, 2270 buy। And then in next round let us see till what level it can scale। I think 2600 2650 for once, you know,
these levels should come. मैं इसमें कोई न्यू हाई की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ इस साइकिल में, क्योंकि आई बिलीव द स्टॉक हैज ऑलरेडी peaked. I think the stock has made a good peak, and this is just the first leg of the distribution that is starting. ठीक है, so nevertheless अपने को छोटी ट्रेड्स मिल जाएंगे 2270 से एक 2600, मे बी 2650, ये एक ट्रेड मिल जाएगा। इसके ऊपर का मुझे नहीं लगता है। ठीक है, वाई नहीं लगता है? बिकॉज इफ यू लुक एट दी क्वार्टरली चार्ट, नाउ लुक एट दिस। अब सारे टाइम फ्रेम को चेंज करके सिर्फ 3 मंथ का टाइम फ्रेम लगाओ और सारे चार्ट्स को जो है 3 मंथ के व्यू पे ही चेक करो आप, क्योंकि वहां पे बड़ी पिक्चर है। सो लुक एट दिस, जिनको भी एक बेसिक प्राइस एक्शन आता है, this candle is doji, this candle is a outside bar as well, and you can see what is happening here. Since the last 9 months we are expanding on both the sides, so this is not good, this is not healthy, this is a sign of a end of some cycle। ठीक है, सो ये ऐसे ही साइडवेज हो सकता है चले और फिर फ्यूचर लेग में ब्रेकआउट करे, या फिर यहाँ से प्राइस करेक्शन चालू कर दे। ओके, सो आई होप समझ में आ रही है बात कि इस बार क्यों न्यू हाई का एम नहीं करना है। नेक्स्ट एक क्वेरी मुझे दिखाई दे रहा है, बेयर कॉर्प साइंस और समथिंग, बेयर क्रॉप साइंस, बेयर क्रॉप साइंस। ओके, see bear crop signs again, dead counter, downtrending counter. This is just a technical move. 5000 is the level where it should peak out, just like last time. So 5000 is a major resistance. If you are stuck in some old position, try to exit at 5000. This is going to be a very very difficult task, lot of confluence, lot of heavy duty resistance। अब देखिए एकदम सिंपल चार्ट है, this is the trend line resistance, this is the horizontal supply demand resistance, and this black line is the 233 moving average, and price is को cross जब तक नहीं करता है it is bearish, and we are downtrending in this channel। So one move up and then who knows what happens। now suppose मैं क्यों कहता हूँ कि यहाँ पे निकल जाओ, इसलिए ताकि अगर ये मूव आया तो आप बच जाओगे। एंड सपोज अगर ये इसको नेगोशिएट कर लेता है, नलीफाई कर देता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स दैट वी हैव मेड सम बॉटम एंड द नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड हैज स्टार्टेड, तो ये हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? But if you are stuck for a prolonged period of time, your capital is stuck, your mind is stuck, and you are not benefiting from all these things। Okay, पीडी लाइट हो गया, बेयर क्रॉप साइंस, ऑरो फार्मा हो गया है, एक क्वेरी पेंडिंग है विच इज आई थिंक वोल्टास। लेट मी चेक वोल्टास। आई थिंक वोल्टास तो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसे कैसे बाय करना है अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ तो भी। तो वोल्टास जैसा लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये बाइंग लेवल पे आ चुका है। सो 1220 एक बाइंग लेवल है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सपोज अगर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है तो एटलीस्ट आपने यहाँ बाय किया होगा। ठीक है, दिस इज द अ गुड लेवल। नाउ दिस स्टॉक कैन स्टिल गो फर्दर डाउन। ओके, सो इफ यू हैव बॉट इन कैश इट्स गुड, यहाँ पे होल्ड करिए आप। थोड़ा सा हमें नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे, नीचे अगर और जाता है तो थोड़ा सा एवरेजिंग भी कर लेना समवेयर नियर 1160, so that you get a good dollar cost averaging, and keep full and final stop loss of this candle in the next round. This should go much higher। okay, so ये एक अपडेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेट मी चेक। सी बैंक ऑफ बड़ौदा तो ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा रखने में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट वन न्यू हाई टिल 122 शुड कम। ओके, आई थिंक इसको रखना वर्थ है, क्योंकि कल जैसा मैंने डिस्कस किया कि पीएसयू बैंक इंडेक्स ही इकलौता इंडेक्स है जो कि बुलिश है एज ऑफ नाउ, एंड दैट बुलिशनेस शुड कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 months, 2 to 3 months। सो प्रॉब्ली इन दैट साइकिल एक और न्यू हाई मिल जाएगा 122 125 के आसपास। ओवर देयर वी कैन एग्जिट दिस स्टॉक। नेक्स्ट क्वेरी है इन्फोसिस एंड टीसीएस। सी इन्फोसिस एंड टीसीएस, आईटी, एंड lot of sideways action is happening in Infosys that suggest कि स्टॉक को सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है।
ओके, लॉट ऑफ बैगेज नाउ जनरली। ये कहाँ ब्रेक होगा ये हम नहीं बोल सकते, इट्स लाइक 50-50, ओके, दोनों ही सिचुएशन में। सो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही टाइट है, सो इसमें बहुत ज़्यादा मैं रीड नहीं करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ओनली से टू थिंग्स कि इफ़ यू आर गेटिंग गुड प्रॉफिट, व्हाई नॉट एग्जिट, ठीक है, एंड लेट इट रिजॉल्व वेर एवर इट वॉन्ट्स टू गो। इट्स नॉट क्लियर ओवरऑल, इवन इफ इट मेक्स अ न्यू हाई और इवन इफ इट गोज हियर, आई थिंक इसमें बड़ी सेलिंग आने वाली है, ठीक है। सो प्रोबेबली व्हाट इट वांट्स टू डू इज इट वांट्स टू create some false new high and then dump something like this, ठीक है। सो ये स्टॉक में देखो, हर स्टॉक को उसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे प्ले करने का हमारा एम होना चाहिए। अब जैसे ये स्टॉक है, इस स्टॉक में सबसे ऑब्वियस बाइंग के दो लेवल हैं। एक तो ये लेवल है, मतलब अराउंड दिस 1670 के आसपास, और एक लेवल समवेयर मैं समझता हूँ कि हम यहाँ भी एक दे सकते हैं समवेयर, दैट इवन दैट ऑल्सो कम्स टू दीज लेवल्स ओनली। बट सपोज अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो हम यहाँ कंसिडर कर सकते थे। सो बेसिकली दिस इज फर्स्ट पॉइंट of safe buying, this is second safe buying point, okay। what are we doing here, understanding, जो सेफ है उसका वेट करते हैं ना। अगर इन्फोसिस नहीं है तो उसको कैंसिल करो, जिसका सेफ है उसको ट्रेड करो। ये थॉट प्रोसेस को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिन भी स्टॉक्स के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं फॉर एक्स वाई जी रीजन, व्हाट हैपेंस इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड ट्रेड्स एट एवरी प्लेस। प्राइस का काम है मूव करना, वो तो यार ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है, बट हमें जो है एक बेस्ट पॉसिबल प्राइस का ही वेट करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ सेफ इन द मार्केट, एंड इवन प्रॉफिट भी वहीं से आपको ज़्यादा आएगा, अंडरस्टैंड। सो एटलीस्ट कैश ट्रेडर्स को तो यही अप्रोच रखना चाहिए। इसी चीज़ को जो मैं ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करता हूँ, लोकेशन प्लस कंफर्मेशन, ये लॉजिक से अगर आप चलोगे तो कैश मार्केट में तो रेयरली कभी प्रॉब्लम होगा। एफ मार्केट में क्या है कि कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ लेवरेज गेम। तो आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, छोटा टारगेट लेना है, एंड कीप चर्निंग, कीप ट्रेडिंग। सो दैट इज अ डिफरेंट गेम। बट कैश मार्केट में, स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में, only and only this approach, ठीक है। So if we follow this approach, is this a support? Answer is no. Do you intend to buy a breakout? Maybe, ठीक है, maybe हम उसे कंसिडर करेंगे, बट अगेन प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे है, तो अगर गया भी 2000 का साइकोलॉजिकल नंबर ऑलरेडी इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो अगर 1950 पे मैं ब्रेकआउट बाय भी करता हूँ तो क्या बस 75 पॉइंट के लिए 2000 के स्टॉक में सिर्फ 75 पॉइंट्स के लिए ब्रेकआउट का रिस्क लोगे? कोई लॉजिक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा भी नहीं कि कोई ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट टाइप का काउंटर है, अंडरस्टैंडिंग। जो अपने थोड़े सीनियर बंदे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट जस्ट द charts, it's the margin of safety, it's the position sizing and all those things, okay। So I think Infosys हो चुका है। One query was pending, Bharat Forge, let me see Bharat Forge। Bharat Forge, see Bharat Forge is again approaching that resistance zone over here near the 720 zone. So try to unlock, try to book out over there. See, this is the resistance 720, okay। In fact ये already उस zone में है, so anytime it can face resistance, so just try to book profit in this stock। You have horizontal resistance, you have trend line resistance, you have moving average resistance, so lot of things are there। It's too heavy, so मैं समझता हूँ यहाँ पे इसको निकलिए और नेक्स्ट राउंड में हम इसे देखेंगे। एक और अच्छी टेक्निक बताता हूँ, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हमेशा, ठीक है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो स्विंग्स होते हैं ना, इनको नोट करके रखा करो राइट हैंड साइड में। तो जैसे जब कोई पुल बैक होना है, सपोज ये पुल बैक करना है, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली एक बेस्ट पोजीशन बन जाता है लेफ्ट हैंड साइड का लेवल। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बस ये देखो कि लेफ्ट साइड का लेवल क्या है, उसको ड्रॉ करो। अब ये मेरा ऑटोमेटिकली बाइंग पॉइंट बन जाता है, और आप जब भी फिबोनाची लगाओगे, ये हमेशा 50 या 60% रिट्रेसमेंट लेवल आएगा, जो कि
सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, राइट? सो दिस स्टॉक 718 के आसपास जस्ट एग्जिट, वेट फॉर 640 टू कम इन नेक्स्ट राउंड, दैट टाइम वी विल सी फॉर फ्रेश बाइंग। ओके, अदानी विल्मर, सी अदानी विल्मर में तो डेटा नहीं है, द चार्ट इज वेरी वेरी फ्रेश, ठीक है। नेवरदलेस लास्ट टाइम इसका मैंने जो है एक आपको कुछ एक लेवल मैंने एक्सटेंड करके बताया था, आई डोंट रिमेंबर, बट दैट वाज समवेयर नियर 500 ओनली, एंड द लॉजिक वाज वेरी सिंपल। आई अज्यूम दैट दिस स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग since many years, okay, and this was the first leg, and then it had a triangle consolidation. So if the triangle breaks, it should rally this much, so that comes to somewhere near 520, ठीक है। अज्यूम कर लो यही लॉजिक मैंने जोमेटो में लगा के 175 का आपको टारगेट दिया था और 174 का हाई प्रिंट हुआ था, ठीक है। सो जस्ट अज्यूम, you need two structure to extrapolate the third structure. So we have first structure, we have second structure, so we can extrapolate the third structure. ये बहुत ही जबरदस्त बात मैं बता रहा हूँ आपको, very very, you know, invaluable information. This is how you can extrapolate the hot IPO. IPO का चार्ट थोड़ी होता है, करेक्ट? तो जब तक स्ट्रक्चर है उसके साथ राइड करो। मैं इन अ स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट कभी कभार ये IPOs डबल ट्रिपल हो जाते हैं वेरी क्विकली। ओके, नेक्स्ट क्वेरी TCS था, TCS वाज पेंडिंग, लेट मी सी TCS। सो सी TCS राइट नाउ, TCS राइट नाउ आई थिंक TCS ठीक है यार, इतना बुरा नहीं है। द थिंग इज कि अगर ये स्टॉक TCS, अगर ये स्टॉक 3500 पे मिले तो बहुत अमेजिंग बाई है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर वन, इफ यू गेट इट नियर 3500, अगर किसी के पास नहीं है आप इसको नोट करके रख सकते हो। अगर किसी दिन बाई चांस मिल गया, इट्स अबाउट चांस, हो सकता है नहीं आए, बट सपोज इफ इट कम्स, देन बाय फ्रॉम 3500 टू से 3450, ये एक बहुत बेहतरीन बाइंग जोन है। पुट योर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो 3400, एंड टारगेट जो इसका मैं दे रहा हूँ वो सीधे होगा 4200, ठीक है। तो एक तो ट्रेड ये मैं इसमें बता चुका हूँ। दूसरी बात, अब ये ट्रेड कभी भी आएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तब भी यही ट्रेड वैल्यूड होगा, ओके। Second thing, suppose if you have bought somewhere here, then I'm afraid that you have to keep stop loss just below today's candle, or roughly you can say at best here, which is what, 3625, 3625, ठीक है। And hope that it starts to go higher. Overall I am bullish on TCS। कहने का सिर्फ एक ही मतलब था कि ये बेस्ट स्लैब है बाय करने के लिए, एकदम शांतिपूर्वक वाला ट्रेड यहाँ पे है, ये यहाँ पे फास्ट टाइप का ट्रेड है, एसएल लगाओ, होप फॉर द बेस्ट। अगर ये भागता है तो ठीक है। इनिशियली आई थिंक 3900 शुड कम वंस, ओके। इफ इट स्टार्ट्स टू गो डायरेक्टली, देन 3900 शुड कम वंस, एंड यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए। इन सेकेंड राउंड यू कैन अगेन बाय somewhere near 3725 for the next move towards 4100 level. Okay, NMDC, ITC, ICICI बैंक, हिंद कॉपर, 5 क्वेरीज हैं ऑलरेडी। सो NMDC 125 कभी ब्रेक नहीं किया इसने पिछले साल में, एंड दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। NMDC इज गोइंग टुवर्ड्स 171 वेरी वेरी सून। ये स्टॉक पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इट्स मेकिंग अ राउंडिंग बॉटमिंग स्ट्रक्चर, कोई भी गिरावट आती है स्टॉक को बाय किया जाए। 144 is the best level to buy this stock. 144 automatically becomes a GAN level. So और यहाँ पे सारे कॉन्फ्लुएंसेस भी हैं, तो 144 अगर आया तो आउटराइट बाय करना ही करना है 125 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलरेडी इफ यू हैव परचेस्ड इट, देन होल्ड इट। 171 175 should come very very soon. ITC, see ITC 320 is our टारगेट, इन्वेस्टमेंट टारगेट है। इनिशियली 280 को लेके चलेंगे, एंड ITC इज गोइंग लाइक अ रॉकेट, ओके। सो फिनोमिनल, होल्ड करेंगे इसे। सी द मूव विल एक्सेलरेट नाउ, द मूव शुड एक्सेलरेट नाउ, एंड ITC
can remain the leadership stock for next 1 year or so, because the FMCG index has not yet bottomed. So what will happen is FMCG index will bottom in this quarter by June. So the leadership stock of that sector must already be in a bull market of its own, and that is being validated by the ITC. Understanding the logic? ठीक है. So ITC पहले ये अपने एक टारगेट को कर देगा. By that time the FMCG index would have bottomed, and this guy would have already started the bull market of its own. So उस राउंड में कोई भी जो डिप आएगा हम उसे बाय करेंगे. अभी some minor hurdle over here, but I think yeah 280 should come very very easily. ओके, नेक्स्ट है BHEL भेल भारत. BHEL काफ़ी दिन से देखा नहीं हूँ मैं. ओके, सो BHEL तो अभी तो हालत ख़राब है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर टूटा हुआ है. और BHEL तो मुझे याद आ रहा है कि 2-4 महीने पहले ही इसे मैंने वार्निंग भी दिया था शायद. एक ट्रेड इसमें ये था, एंड देन देर आफ्टर इसमें से निकल जाने को मैंने कहा था. अच्छे से मुझे याद है. क्यों? बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली TCS. एकदम ये TCS वाली कहानी इसमें रिपीट हो रही थी. अभी देखिए BHEL अभी 42 रुपीज़ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है. सो एक बार हो सकता है थोड़ा 46-45 तक आए, और फ्यूचर में ये स्टॉक जब 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड होगा उस समय इस स्टॉक में बुलिशनेस आएगी. ठीक है, तो जब तक 60 रुपये क्रॉस नहीं होता BHEL अगेन 42 तक जा सकता है. एवरेजिंग बिल्कुल मत करना इन सब स्टॉक्स में, क्योंकि वी आर, जैसा मैंने बताया पहले, तो ये देखो कि बाजार कहाँ पे है. तो वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ लास्ट स्टेज ऑफ द बुल मार्केट. तो यहाँ पे लूजिंग काउंटर्स को एवरेजिंग गलती से भी नहीं करना है. अमृतांजन इज द नेक्स्ट क्वेरी. अमृतांजन हेल्थ. So Amrutanjan Health has not done anything great, but it has also not done any bad thing. It's just a good, healthy 20% correction. So in this stock, see, you can't do much except that you have to trail to 770 rupees. That's it. ट्रेल करके होप फॉर द बेस्ट. अगर स्टॉक एक अप ट्रेंड पकड़ लेता है तो ठीक है. अगेन इट कैन गो टिल 1000 रुपीज. एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग मच टू रीड इन दिस stock. So that's it, right? And one query was pending, that is ICICI Bank. तो ICICI बैंक आई थिंक कल या परसों शायद हमने डिस्कस किया कि ये और नीचे अगर आए तो बेहतरीन होगा. सो आई वुड लाइक टू गो विद दैट व्यू ओनली. ओके, हालांकि मुझे बहुत डाउट है कि नीचे आएगा, बट स्टिल यहाँ पे एक ही चीज़ ये है, एक ही ट्रेड फॉर द टाइम बिंग ये है कि आज का जो बॉटम बना था आई थिंक समवेयर दैट 695 to 735. So this is one tight trade over here. Okay, maybe in next round if it comes okay, और अगर ये नीचे नहीं भी आता है, but suppose if it establishes itself here, then also there's no issue. Why? Because we will then buy at 720, or we will buy somewhere here and keep this as a stop loss, and then next target होगा सीधे 800 का, जहाँ पे ये गैप है. ठीक है. सो इस तरीके से सोचो. मार्केट पहले हम इसकी वेट कर रहे थे, ठीक है, बट हो सकता है मार्केट नहीं आए. अगर मार्केट नहीं आ रहा है दैट मीन्स मार्केट इज स्ट्रांग. इफ द मार्केट इज स्ट्रांग इट नीड्स टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रक्चर, राइट? तो अगर वो स्ट्रक्चर बनाएगा तो हम उस स्ट्रक्चर को अगली बार यूज करेंगे. ऐसा नहीं सोचना है कि इसके भरोसे बैठे रहना है, नहीं, ऐसा नहीं. वी हैव टू बी फ्लूइड इन दिस मार्केट. Okay, so last query. I think the last query is on Hindustan Copper, Hind Copper. So I will take this query. Hind Copper right now is sluggish. Okay, कुछ खास नहीं कर रहा है. I think अभी ये एकदम बीच में बुलिश हुआ था, बहुत अच्छा बुलिश हुआ था, but then I think it has given up. So in this stock, number one, don't average, etc. If you have bought here, then just keep 100 rupees as a stop loss, or you can keep 99 rupees as a stop loss. That's it. जिस दिन ये 136 के ऊपर ट्रेड करेगा तब जाके इसमें जो है बहुत ही अमेजिंग मूव आएगा. Until
it crosses that 136, I think it is going to remain in this 100 to 136 range. That's it. कुछ खास मुझे नहीं लगता कि इसमें स्कोप है इस स्टॉक में. ओके, सो आई थिंक आई हैव टेकन ऑल दी स्टॉक क्वेरीज. So let's wind up today's session. Still we have taken 50 minutes, so not bad. So thank you once again for watching, and channel को like share subscribe करना ना भूलें. Instagram पे भी join कर लीजिए, and anybody who is interested in the training that is scheduled for April 16th and 17th, आप WhatsApp करके ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, जय माता दी.